Hello students, we are going to start question number 5 of exercise 4.3 quadratic equations NCERT book we are following. Question is there on the board. Read the statement carefully. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. So how should we start now? Read the first line. Sum of the marks in maths and English is 30. So I am going to consider let marks in mathematics is equal to x. कि मैथ्स में मार्क्स कितने सपोज कर लिए हमने x. सो मार्क्स इन इंग्लिश कितने होने चाहिए 30 माइनस एक्स. क्यों 30 माइनस एक्स? क्योंकि दोनों का टोटल 30 है. अगर एक एक्स है तो दूसरा 30 माइनस एक्स होगा. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारी गिवन कंडीशन क्या कह रही है? हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स. मैथ्स में अगर 2 नंबर ज़्यादा आ जाएं, यानी कि पहले x हैं तो कितने आ जाएं x प्लस 2 अगर हो जाएं. एड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. अब देखिए पहले इंग्लिश में कितने हैं 30 माइनस एक्स हैं, 3 उससे कम हो जाएं तो दैट मीन्स -3. देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी 210 होगी. So this is our condition now. We need to solve it. 30 minus 3, 27. So let us open the bracket. पहले इस x के साथ पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 27 माइनस एक्स, फिर 2 के साथ सेम 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210. So it becomes 27x minus x square. 27 into 2 is 54 minus 2x. At last what will we get? Minus x square. 27x minus 2 plus 25x. Then plus 54 is there. 210 will come to left side. It will become negative. चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x. 210 में से 54 माइनस करेंगे तो आएगा 156. मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ -1 से तो साइन विल बी चेंज्ड. वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना पड़ेगा. कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या कर सकते हैं -12x माइनस 13x. ये मेथड हमने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं. आई होप यू आर क्लियर एज ऑफ नाउ. तो पहले दोनों में x कॉमन तो x माइनस 12, देन माइनस 13 कॉमन x माइनस 12. सो we get x minus 12 into x minus 13 is equal to 0. इनको सॉल्व करके दो वैल्यूज आएंगी x की. एक आएगी 12 और दूसरी वैल्यू आएगी 13. अब हमारे पास x के दो आंसर आ चुके हैं 12 और 13. तो हमें क्या करना है, दो केसेस बनाने हैं. केस 1 when x is 12 then 30 minus x means 30 minus 12, 18. So marks in maths will be 12 and marks in English will be 18. So this is one answer, 12 and 18. And second case will be when x is 13. Then 30 minus x will be 30 minus 13, that means 17.
So in second case, marks in maths is 13 and marks in English is 17. So we have two answers of this question. One is 12 18 and second is 13 17. I hope you are clear with this question. So let's move to next question, question number 6 now. Next question, question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. So we have a rectangular field here. तो एक rectangle बना लेते हैं. It will be easy to understand the question. Let me have a rectangle ABCD. Diagonal is 60 meter more than shorter side. तो एक diagonal तो बनाना पड़ेगा. Shorter side ये है, मान लीजिए ये x मीटर हमारी shorter side है, और डायगनल 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड मीन्स अगर ये x है तो ये डायगनल कितना होगा, x प्लस 60. लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि ये लॉन्गर साइड x प्लस 30 होगी. तो आई होप यू आर क्लियर नाउ. हमें लिखना पड़ेगा लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर, सो इट्स लेंथ इज x प्लस 30 एंड डायगनल इज x प्लस 60 मीटर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. एंड हाउ विल वी सॉल्व in triangle ABC using Pythagoras theorem. क्या होती है Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is x plus 60, so its square we need to take. AB square means x plus 30 square, BC square means x square. So let us solve it. A square B square plus 2AB, that means 120x. Right side A square B square plus 2AB plus x square. So this is what our right side is having, x square. So what we need to do now, this x square and x square is getting cancelled, right? So one is cancelled. What we are left with, I am moving everything on right side. लेफ्ट साइड में 0 रह गया. इधर मेरे पास सबसे पहले x स्क्वायर है, तो मैं सबसे पहले x स्क्वायर लिख रहा हूँ. फिर x वाली टर्म्स लिखूंगा. यहाँ 60x है, ये 120x राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. फिर ये 900, 3600 इधर माइनस हो जाएगा, राइट. तो देखते हैं क्या बनता है. अब मैं 0 को राइट में लिखूंगा, बाकी सब लेफ्ट में. तो एक्स स्क्वायर 120 में से 60 माइनस किया तो 60 ही बचेगा. 3600 में से 900 अगर माइनस करना हो तो क्या बचेगा हमारे पास, 2700. अब आगे हमें क्या करना है, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें या फिर क्या यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें. जो ठीक लगे आप उसी को यूज़ कर सकते हैं. हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके देखते हैं इस क्वेश्चन में. सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डी की वैल्यू निकालनी होती है. डी कैसे होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू माइनस 2700. 60 स्क्वायर इज 3600. ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 4 से करेंगे 10800. इनको आगे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 14400. तो ये हमारी डी की वैल्यू आई. अब आगे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी. तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको with the same formula. Let us find what's the value of x. So x will be minus b. What is b? Minus 60 plus minus root d 14400.
2 times a is 1, माइनस माइनस प्लस, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, डबल जीरो है तो बाहर एक जीरो आ जाएगी। एक बार प्लस का निशान लेंगे, 60 प्लस 120 इज 180, 60 माइनस 120 लेंगे तो माइनस 60, तो ये तो नेगेटिव आ रही है, वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। 180/2 करेंगे तो क्या होगा 90, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 90। तो बस अगर x 90 है तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये 90 प्लस 30 है तो ये बन जाएगी 120। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही निकालनी थी, लेंथ हमारी 120 मीटर और ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारी 90 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर हैं। आई एम गोइंग टू सपोज लेट टू नंबर्स बी x एंड y। एक हमने x सपोज कर लेते हैं और दूसरा नंबर हम y सपोज कर लेते हैं, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, और x जो है y से बड़ा। अब देखिए कंडीशन 1 हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180। देखिए कितना आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। कंडीशन सेकंड, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा हमने सपोज किया है, y, यानी कि y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, x। So we can write y square is equal to 8x. From first and second equation, y square की वैल्यू 8x यहाँ पुट हो सकती है, तो क्या बनेगा हमारे पास x square माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो हम क्या कर सकते हैं, 8x 180 को लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और अब हमें दो मेथड हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कोशिश करते हैं करने की। तो इसका क्या बनेगा, माइनस 18x प्लस 10x। माइनस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आएगा, माइनस 18 में 10 ऐड करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो बड़ा ईजिली ये इससे हो रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, we get x minus 18, then 10 common, x minus 18 is equal to 0. Next step will be x plus 10 multiply x minus 18 equal to 0. तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक x की वैल्यू आएगी -10 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 18। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि जो x की वैल्यू आई है उसी से ही y निकलनी है, तो इन x की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। जैसे पुट x इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन सेकंड, व्हाट विल वी गेट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10 -80, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी विल डू, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -10, उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। देन पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकेंड, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 8 मल्टीप्लाई 18। 8 मल्टीप्लाई 18 मतलब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या वैसे इसका स्क्वायर सॉल्व करने का मेथड लगा लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 जार 64, 6 कैरी 8 एंड 6 14, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी +-12, राइट, +-12। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे। क्या दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू तो 18 ही रहेगी, एक तो 18 के साथ प्लस का 12, या तो ये कॉम्बिनेशन है,
या आंसर 18 के साथ क्या आएगा -12। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। तो आई होप 7th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमारे अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।